ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥੀ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਹਰ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਂਟਦੇ ਝਿੜਕਦੇ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। मदद और सहायता करो प्रभु यीशु मसीह के मिठे भरे नाम च पिता, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मिठे भरे नाम विच बड़ा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। आओ असी वचन दे वल ध्यान करिए। आओ असी अज पढ़ते हैं व्यवस्था सार 5:25। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर से सुने तब तो मर ही जाएंगे। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਬ ਹਮ ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਬੜੀ ਆਗ ਸੇ ਹਮ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾएंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਹਿਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਮਰੀਏ। हालेलुया। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर से सुने तो मर ही जाएंगे। कहता जे असीं दोबारा परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनांगे तो असीं कहंदे मर जावांगे। ये सचमुच भैणों ते भराओ वो बहुत ही डर गए। हालेलुया। क्योंकि इब्रानियां 12:29 दे विच लिखिया है कि क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये सचमुच भैणों ते भराओ साडा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। जो दया दी खान है, जो प्रेम करने वाला है। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि पिता परमेश्वर ने जगतां नाल यह प्यार कीता, उन्हें अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता दे दिता, तां जो भी उते विश्वास करे वो नाश ना होवे और सदा दा जीवन पावे। ते सचमुच प्यारिओ, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो दूसरे पासे न्यायी भी है। जो प्रेम करने वाला है, ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਤਿਆਗੇ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਸਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:29 ਚ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਸਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਆਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿਜਕੀਏਲ 1:26 ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो नीलम का सा बना हुआ सिंहासन था। हिजकियल इस गल बोलता है, क्या देखता है, जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो नीलम का बना हुआ सिंहासन था, उसके ऊपर मनुष्यों के समान कोई दिखाई देता था। कहता एक सिंहासन है, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बैठा होया है। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर, कहता ਉਹਦੀ कमर तो लैके ऊपर दे वल ਨੂੰ मानो झलकाया हुआ पीतल, कहना चमकदा होया एक पित्तल वर्गा दिखाई दिंदा सी, और उसके भीतर और उसके चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे आग सी दिखाई पड़ती थी। हालेलुया।
ਉਹਦੇ ਕਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ कहना आग दिखाई देती सी। हालेलुया। ते सचमुच और उसके चारों ओर रोशनी ही रोशनी सी। हालेलुया। ते सचमुच परमेश्वर अग है। हालेलुया। इत्थे देखिया कि सचमुच जिहड़ा सिंघासन ते बैठा है, हालेलुया, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ तरफ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਾਨੀਅਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇ ਦੇਖਤੇ ਦੇਖਤੇ ਅੰਤ में क्या देखा। ਦਾਨੀਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਧਰੇ गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिमसा उजला और उसके बाल सिर के बाल ऊन के सरीखे थे, उन वर्गे सी। उसका सिंहासन, हालेलुया, उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੀਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹੀਏ ਅੱਗ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। हालेलुया। ये साड़ा वचन साड़ा परमेश्वर भस्म करने वाली अग है। हालेलुया। तो सचमुच वो पित्तल दे वांग ते अग की तरह जिहड़ा दिखाई दिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। जो सिंघासन ते विराजमान है, हालेलुया, उसदा सिंघासन ते उहदे जिहड़े पहिए है वो भी अग्निमय है। हालेलुया। तो सचमुच जिहड़ा साडा परमेश्वर है, हालेलुया, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। दूसरा राजा 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ वो चलते चलते बात कर रहे थे। हालेलुया। जब ਅਸੀਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ सचमुच वचन दादा जब वो चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ, अचानक ही एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उसको अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गए। हालेलुया। इत्थे असीं देखिए जो परमेश्वर ने रथ भी भेजा, घोड़े भी, वो भी अग्निमय। हालेलुया। वो भी किया अग्निमय है। तो वो अग्नि जदों तुरे जाते सी अग्निमय घोड़े आए, रथ आए तो उन्होंने उन्होंने एक दूसरे को अलग कर दिता। वो एलिया नूं लैके स्वर्ग नूं चले गए। हालेलुया। तो सचमुच जिहड़े घोड़े है वो रथ भी है, वो भी अग्निमय है। जिस तरह असीं पहला देखिया परमेश्वर अग है तो सचमुच वो सिंघासन भी जो है वो भी अग्निमय और वो पहिए भी अग की तरह दिस रहे सी। और जब उसने अलीशा एलियन लैके गया तो उत्थे असीं देखते हैं कि अग्निमय घोड़े ते रथां ने एलिया तो अलीशा नूं वखरा कर दिता ते एलिया नूं लैके जिहड़े वो अग्निमय रथ है स्वर्ग नूं लै गए। ते इत्थे असीं देखते हैं कि एक जगह जद आराम दे राजा ने परमेश्वर दे जन दे उत्ते जिहड़ा समय दा राजा सी उहदे ते हमला करन दी सोची ते सचमुच अलीशा ने उन्हें कहा, हाय राजन तू उस तरफ नहीं जाना। तो सचमुच गया नहीं। तो उस राजे ने सोचिया कि साडे विचों शायद किसी ने खबर दी है कि जिहदे करके वो राजा साडे वालों नहीं आया। तो सचमुच तो राजे ने कहा अपने कर्मचारी ने, कौन है जिहड़ा साडे चों गद्दार है, जिहड़ा साडीआं गल्लां जिहड़ा है इजराइल दे विच दसदा है। तो सचमुच वचन दे विच लिखिया है। तो कर्मचारियों ने कहा, हे राजन साडे विचों कोई गद्दार नहीं जिहड़ा इधर दीआं गल्लां दूसरी ओर पहुँचा सके।
कहते परमेश्वर का जन है जिहदा नाम अलीशा है, वो दोथान दे विच रहिंदा है। वो जिहड़ियां तुसीं अपने शाइन कक्ष दे विच भी आरामगाह दे विच भी तुसीं गल्लां करदे आ, तां वचन च लिखिआ कहंदे ਉਹ भी ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਇਹ सचमुच ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, आग्ञा ਦਿੱਤੀ कि जाओ अलीशा ਨੂੰ दोथान ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि रातों रात ਜਿਹੜਾ दोथान ਨੂੰ आराम दे फौजां ने उस नगर ਨੂੰ घेर लिया। ਜਦੋਂ अलीशा ਦਾ सेवक ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ डर गया, कहता हे मेरे स्वामी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਿਰ ਗਏ ਹਾਂ। तद ਜਦੋਂ अलीशा बाहर निकलिया ਉਹਨੇ देखिया नगर घिरिया होया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ हे परमेश्वर इस सेवक ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ खोल दे। ਤੇ सचमुच ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ खुलियां ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ देखदा है, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। जब वो देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। जब सेवक ने देखा कि अलीशा के चारों ओर जिहड़ा पहाड़ है, हालेलुया, वो अग्निमय रथां नाल भरिया होया है। भैण ते भराओ, परमेश्वर की जिहड़ी सेना है वो भी अग्निमय है। हालेलुया। इहदे विच कोई शक नहीं है। या साडा परमेश्वर, हालेलुया, भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। उहदा सिंघासन अग्निमय है। हालेलुया। उहदी सेना अग्निमय है। हालेलुया। अग्निमय रथां वाली है। ते महान मान लो साडा परमेश्वर फिर किहो जिहा है। हालेलुया। ते सचमुच असीं देखदे हां इब्रानिया 1:7 दे विच और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है। हालेलुया। कहता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है कि वो अपने दूतों को पवन, वो अपने दूतों की बनाता, हवामा बनाता है। हालेलुया। और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। हालेलुया। कहता वो अपने स्वर्गदूतों को पवन की तरह, हवा की तरह, और अपने दासां नूं अग दीयां लाटां की तरह, अग दियां भांबड़ां की तरह इस्तेमाल करता है। हालेलुया। परमेश्वर साडा अग है। हालेलुया। सचमुच उसका वो खुद अग्निमय है, उहदा सिंघासन अग्निमय है, अग है, और उसकी जो सेना है वो भी अग्निमय है। हालेलुया। ते सचमुच परमेश्वर के वचन च लिखा है वो अपने स्वर्गदूतों को भी अग की तरह इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ते सचमुच अग की तरह इस्तेमाल करता है। हालेलुया। असी प्रभु यीशु मसीह के बारे पढ़ते हैं। या प्रकाश की पोथी के विच लिखा 1:14 दे विच, उसके सिर और बाल ऊन श्वेत ऊन वरना पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। हालेलुया। उहदी अखां किदां सी? अग दियां ज्वाला दी तरह सी। हालेलुया। अग दे वांग सी उहदी अखां। हालेलुया। जिस अग नूं देखदे आ उसी तरह उहदी अखां। हालेलुया। ते सचमुच वचन दे विच आपां पढ़दे हां, पहला राजा 18:38 दे विच लिखिआ है। हालेलुया। जदों एलिया बाल दे पुजारियां नूं, हालेलुया, नबियां लैके जदों पहाड़ ते गया, जदों उन्होंने कहा कि किन्हां दा परमेश्वर सच्चा है, वो कहता ठीक है, जिहड़ा अग नाल उत्तर देगा वही सच्चा परमेश्वर होएगा। ते सच में उन्होंने एक वेदी बनाई। उस वेदी दे चंगी तरह उस लकड़ियां रखियां ते उहनूं ਉਹਦੇ ते एक बछड़ा रखिया ते उहनूं चंगी तरह पानी दे नाल उहनूं भे दिता। ते सचमुच जब बाल दे पुजारियां ने उन्होंने बाल नूं पुकारिया, बड़ा रौला पाया, पर कोई उत्तर ना मिलिया। ते सचमुच परमेश्वर दा दास जिहड़ा उन्होंने कहता है तुहाडा देवता सुत्ता होना या किते गया होना, अलग अलग तरीके नाल उन्हों का मजाक उड़ाया, पर कोई उन्होंने उत्तर नहीं मिलिया। तो जदों
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਜੋ ਬੇਦੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਝੱਟ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 51 ਦੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। कहता परमेश्वर दे अगे टुटिया हुआ मन परमेश्वर दे अगे योग बलिदान है। टुटे हुए मन नूं तू तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। जिहड़ा टुटे मन परमेश्वर दे कोल आंदा है, परमेश्वर नूं पुकारदा है, परमेश्वर उहनूं उत्तर दिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उन्होंने उत्तर दिंदा है। पर बहुत सारे लोग है जिहड़े परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। हालेलुया। तो सचमुच दूसरे लिए भी ठोकर का कारण बनते हैं। तो सचमुच फिलिपियां 4:18 ये गल कहता है, क्योंकि बहुत ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ मसीह होकर मसीही चाल नहीं चलते और दूसरा एक ठोकर बनते वो क्रूस दे बैरी है। इस करके सही तरीके नाल चलीए, परमेश्वर के नाम नूं महिमा वडियाई देईए, परमेश्वर नाम नूं उच्चा उठाइए। जिहड़ा परमेश्वर ने सानूं मौका दिता है, उस मौके का पूरा लाभ उठाइए। हालेलुया। क्योंकि वचन च लिखिया कि दिन बुरे हैं। हालेलुया। और रोमिया 12:1 दे विच लिखिया है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करना। कहता इसलिए हे प्रभु, मैं परमेश्वर की दया का तुहानूं चेते करा के कहता हाँ, परमेश्वर की दया तुहानूं चेते करा के कहता हाँ, तुहाडे अगे बेनती करदा हाँ कि अपने शरीरां नूं जिहड़ा जीवित है, जिहड़ा पवित्र है, परमेश्वर नूं मन भाउंदा बलिदान करके चढ़ा, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी रूहानी बंदगी है। हालेलुया। ते सचमुच परमेश्वर जिहड़ा है वो कहता है तुसी अपने आप को जीउंदे परमेश्वर दे अगे मन भाउंदा बलिदान करके हालेलुया चढ़ा दे। यही तुहाडी रूहानी बंदगी है। ते सचमुच परमेश्वर नहीं चाहता किसी को नाश करे, परमेश्वर चाहता सारियां रूहां बचाईयां जाण। हालेलुया। भैणां ते भराओ, ਉਹਦੇ डर ते भय दे विच रहना है, ਉਹਦੀ मर्जी के मुताबिक चलना है। हालेलुया। बुराई का रास्ता छड्ड के परमेश्वर के सच्चाई के राह ते अगे बढ़ना है। ते सचमुच परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। ये सचमुच जे परमेश्वर अग है, हालेलुया, वो अग इस वक्त साड़ी सामर्थ है। यूहन्ना ने कहा सी, मैं तो तुहानूं पानी नाल बपतिस्मा दिंदा, जिहड़ा मेरे बाद आने वाला वो तुहानूं अग नाल बपतिस्मा देगा। ते सचमुच वो सानूं अग नाल नमकीन करदा, वो सानूं अग नाल बपतिस्मा दिंदा है। हालेलुया। ताकि असीं परमेश्वर दे राज दी गल्लां नूं समझ सकीए, परमेश्वर दे राज नूं उच्चा, परमेश्वर दे राज नूं जान सकीए। हालेलुया। भैणां ते भराओ, हालेलुया। परमेश्वर सानूं जिहड़ी हुण अग दित्ती है उस परमेश्वर दे राज विच बदन दे लई, हालेलुया, परमेश्वर की मनादी करने के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए, हालेलुया, सानू दिती है। पर जे पापा तो तौबा ना की, मार्ग नहीं छड्डिया, बुराई का रास्ता नहीं छड्डिया, तो प्यारिओ, जे परमेश्वर प्यार करने वाला है, दया करने वाला है, तो वचन दसदा है दूसरी ओर वो भस्म करने वाली अग भी है। इस गल का ख्याल रखिए। तो परमेश्वर जिहड़ा है पहला पतरस 1:15 दे विच ये गल कहता है, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वचन लिखा है, जिस तरह तुहाडा
सदन वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन दे विच की बनना है? पवित्र बनना है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर कहता पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। थोड़ा बुलाने वाला किया पवित्र है। और अब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। तुसी हे पिता उन्होंने कह के बुलाते हो, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है। बिना पक्षपात न्याय से वो काम करता है, न्याय करता है। तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया। साडा देश धरती ने, साडा असली देश जिहड़ा स्वर्ग है। और परमेश्वर का वचन दसदा है, परमेश्वर का दास पतरस कहता है अपना मुसाफरी का समय जिहड़ा ये इस वक्त समय धरती ते है, वो परमेश्वर के डर ते भैद विच रहिंदे होए बतीत करो। हालेलुया। और सचमुच जे असीं डर ते भैद विच रहिंदे बतीत करांगे तां परमेश्वर की दया नूं देखांगे, और जो न्याय होएगा वो दया ना होएगा, क्योंकि जे कुछ डर च रहांगे, हालेलुया, परमेश्वर का डर साडे अंदर रहेगा, तां असीं परमेश्वर का डर च रहिंदे होए दूसरे ते दया करने वाले हो सकांगे। और परमेश्वर की दया साडे उत्ते भी बनी रहेगी। और आने वाले समय दे विच परमेश्वर दे प्रेम नूं ही देखांगे और दे क्रोध तो बच जावांगे, उस अग का सामना करन तो बच जावांगे जिहड़ी भस्म करने वाली है। इसलिए आओ असीं तौबा करिए, परमेश्वर वाल मुड़ीए ते बचाए जाइए और प्रभु की हजूरी तो हमेशा ही सुख के दिन पाइए और अपने परमेश्वर के नाम नूं उच्चा करिए और अपने परमेश्वर की अगवाई पूरी दुनिया के विच गज बज के दीए। धन्यवाद। परमेश्वर तुहानूं वचन दा आशीष बरकत दे। आओ सारे अपनी अखां नूं बंद करदे आ, प्रभु की हजूरी च अपने सिर नूं झुकाने आ, प्रार्थना दे विच आओ। हे सामर्थी परमेश्वर, हे राजियां दे राजा, प्रभुआं दे प्रभु, तुहाडा धन्नवाद करदे आ अज दे सुंदर समय लई। परमेश्वर तू प्रेमी परमेश्वर है, जिसने अपने इकलौते पुत्र नूं इस संसार दे विच घल दिता। जो भी उत्ते विश्वास करे वो नाश ना होवे बल्कि सदीप जीवन पावे। हे मेरे परमेश्वर, सचमुच तू सानूं जिंदगी देण लई आया। परमेश्वर पिता, तू अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा तू सानूं अपनी आत्मा की अग ना भरिया, ताकि पिता असीं तेरे वचन दिया गहरे भेदां नूं समझ सकीए, स्वर्गी गल्लां नूं जाण सकीए और स्वर्गीय गल्लां उत्ते ध्यान लगा सकीए। और परमेश्वर महान प्रभु आप बचिए दूसरिਆਂ ਦੇ बचन का कारण बनिए। और प्रभु सदा ही तेरी दया रूपी ढाल हेठा रहिए और महान परमेश्वर तेरी महिमा करते रहिए। और महान प्रभु जी तेरा नाम उच्चा होवे, तेरा नाम महिमा पाए। परमेश्वर जिन्हें भी प्रभु इस वचन नूं सुन, मेरे परमेश्वर जी सारे आशीष ते बरकत पाओ। धन्नवाद करते हैं। सारा आदर, सारा मान, सारी वडियाई तुहाडे नाम नूं दिंदे होए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच हुकम मंगदे हां। आमीन। हालेलुया। प्रभु सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत दे। जय मसीह।